once again. Welcome to welcome back to my channel, that is NT UGC Net Paper to Education. अगर आप नए हैं एंड सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, देन डू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे जैसे ही मैं नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँ. As per the new syllabus, we are starting paper to education, and today we are going to learn about unit number 2nd D section. In that we are going to study approaches to understanding politics, behaviorism, theory of system analysis and theory of rational choice. So without further ado, let's just start with today's session. As you can see over here in the syllabus, it is given unit number 2nd D division. In that what we have to study point number 1, that is relationship between politics and education, जो कि हमने already कर दिया है. Then second topic, that is perspectives of politics of education. In that what sort of perspectives do we have to study? Liberal perspective, conservative perspective and critical perspective. Last time also we had studied the same. So today we are moving forward. Today we are going to study about the third topic, that is approaches to understanding politics. In that which are the approaches for understanding the political arena. So behaviorism we are going to study, then theory of system analysis and theory of rational choice with respect to politics. And then after we will be studying topic 4. So let's just start with today's session. You could see on the screen, I hope audio video slide clear है मेरी. Topic number 3, that is approaches to understanding politics. In that the very first one that we are going to study is behaviorism. Now could you tell me what do we mean by behaviorism? Good. Behaviorism is talking us about or telling us something about the behavior. Behavior of whom? Behavior of somebody that's been associated in the arena of politics. So if we are talking about the political area, then what sort of things that needs to be there in order to maintain a particular protocol, that we are going to study. Because if regularity, you can say, or some of the good qualities, or we can say positive qualities, you are not able to find under the politics arena, then definitely it's going to harm the entire nation and not only the education system. So we are going to study what are certain qualities that is building up the behavior of this particular arena. So let's just start. See over here, the topic itself tells behaviorism. Behavioral approach, let's just first study that. David Easton is the propounder, or you can say he is the a person behind this particular approach. David Easton, an American political scientist, was the first one to differentiate behavioralism from behaviorism in 1950s. कहना ये चाहते हैं कि वे जो डेविड ईस्टन थे वो अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट रह चुके हैं या थे, एंड उन्होंने सबसे पहली बार डिफ्रेंशिएट किया था बिहेवियरलिज्म एंड बिहेवियरिज्म के बारे में. बिहेवियरल अप्रोच वो कहते हैं कि एक ओरिजिनेटेड है, क्यों ऐसा है? ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रेडिशनल अप्रोचेस. द बिहेवियरल अप्रोच फोकसेस अपॉन पॉलिटिकल बिहेवियर. इट कॉल्स फॉर द स्टडी ऑफ एक्ट्स, एटीट्यूड, प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ मैन इन द पॉलिटिकल अरीना. कोई पॉलिटिक्स में ये चेंज लाने की ज़रूरत है, वो चेंज लाने की ज़रूरत कब कहेगा? जब वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई ना कोई चीज़ से, जो ट्रेडिशनल चीज़ सालों से चलती आ रही है या कोई इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट नहीं हुआ है और उसको डिससेटिस्फैक्शन है, तो उसके बिहेवियर में चेंज आता है. सो दैट इज़ व्हाट अबाउट बिहेवियर अप्रोच. Behavioralism, David Easton has given 8 points as intellectual foundation stones of behaviorism. So which are those 8 points? Let's just go through that. Number 1, regularity. These are certain qualities which you need to see or you will be able to see under the political arena. First one is regularity. It stands for discernible uniformities in political behavior which can be expressed in theory like statements, facilitating explanation and prediction of political phenomena. Regularity नहीं रहेगी, punctuality नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा? एक पॉलिटिकल फिनोमिना आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? तो इस वजह से कह सकते हैं कि रेगुलरिटी, यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न से काम ढंग से होता है या नहीं,
वही पॉलिटिकल बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में हमें आसानी रहेगी या हमें हेल्प करेगा. सो रेगुलरिटी इज वन सच क्वालिटी विच नीड्स टू बी देयर. सेकेंड डेविड डिस्टन कहते हैं वेरिफिकेशन. इट इम्प्लाइज एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली दैट काइंड ऑफ नॉलेज विच कैन बी एम्पेरिकली टेस्टेड एंड वेरीफाइड. जिस एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक बेस लेके चलते हैं एज अ प्रूफ, तो उसी को वैसे ही टाइप का नॉलेज हम कह सकते हैं एक्सेप्ट करेंगे और जो कि वेरीफाइड है और टेस्टेड है. तो पॉलिटिकल अरेना में एजुकेशनल और पॉलिटिक्स हमें पता है इंटर रिलेटेड है. तो अगर वो वेरीफाइड है, कोई भी पॉलिसी हो गई, एक्ट हो गया, पॉलिटिकल अरेना में कोई भी डिसीजन लिया गया, तो वो वेरीफाइड तभी माना जाएगा जब वो एम्पेरिकली टेस्टेड हो सकता है. सो हियर वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग दैट it is dealing with some sort of knowledge that can be verified and tested empirically, which has some base. Third, David Easton ने कहा है techniques. It symbolizes the behavioralist emphasis on the adoption of appropriate tools of data collection and analysis. ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं, ये 8 points जो डेविड ईस्टन ने कहे हैं कि बिहेवियरलिज्म किसे कहते हैं, या वो इंसान जो बिहेवियरलिज्म में बिलीव करता है, उसके अंदर आपको ये पर्टिकुलर क्वालिटीज़ देखने को मिलेगी और इसका लिंक हम पॉलिटिक्स के साथ करते हैं. सो हियर वी कैन से टेक्निक सिम्बोलाइजेस द बिहेवियरलिस्ट एम्फोसिस ऑन द. तो बिहेवियरिज्म इन पॉलिटिकल अरीना हम कह सकते हैं कि इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ, यू कैन से, मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पाथ ऑफ मेकिंग अपग्रेडेशन नॉट ओनली ऑफ वन पर्टिकुलर सोसाइटी बट ऑफ अ नेशन एज अ होल. Then fourth point कहते हैं quantification. It stands for the advocacy of rigorous measurement and data manipulation in political analysis. Here it says that advocacy, that is promotion of rigorous measurement and data manipulation. अगर आपको कोई changes की ज़रूरत होती है या लगता है तो वो changes भी quantification numerical terms में हम उसके वैसे changes भी calculate कर लेते हैं. So this is all about behaviorism. Let's just move forward with the fifth point. देन फिफ्थ पॉइंट कहते हैं बिहेवियरिस्ट पर्सन में वैल्यूज़. जो भी पॉलिटिकल अरीना में है उनका बिहेवियर या वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर में एक पर्टिकुलर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, वैल्यूज़. अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरलिस्ट नीड्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम फैक्ट्स. एथिकल इवैल्यूएशन इज वन थिंग, एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन इज अनदर. ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इंक्वायरी हैज़ टू बी वैल्यू फ्री एंड वैल्यू न्यूट्रल. दैट मीन्स कि यहाँ पे कहते हैं कि अनबायस होके काम करते हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो पॉलिटिकल अरीना में आप कह सकते हो कि एक इवैल्यूएशन प्रोसेस में या उसमें वो एसोसिएटेड है. तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात यहाँ पे की गई है. दैट पर्सन विल बी हैविंग ग्रेट वैल्यूज इन हिम और हर. देन सिक्स्थ पॉइंट सिस्टमेटाइजेशन, विच मीन्स कि पहले से जो चलती आ रही है न्यू कॉन्सेप्ट प्रोपोजिशन या एक्सपीरियंस के बेसिस पे कॉजल थियरी मतलब कॉज एंड इफेक्ट. कोई कॉज होगा और उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा. बहुत सारी ऐसी थियरीज है. तो बिहेवियरिस्ट कॉन्शियस एफर्ट्स टू स्ट्रक्चर द ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोपोजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल इंटररिलेटेड, यानी कि रैशनल थिंकिंग की बात की गई है. दैट पर्सन विल बी फोकसिंग अपॉन रैशनल थिंकिंग. देन प्योर साइंस, बेसिक साइंस. The behaviorist contend that both theory and its application are parts of scientific method must be closely linked. That is, सिर्फ थियरी काम की नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच भी उतना ही ज़रूरी है. साइंटिफिक आप कह सकते हो एक अप्रोच लाने के लिए, और साइंटिफिक मेथड का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी है. सो थियरी एंड प्रैक्टिकल शुड बी लिंक्ड टुगेदर. And the last one, that is integration. The study of political science should be integrated with others. A social science interdisciplinary approach should be adopted. It will facilitate cross-fertilization of ideas and results in more generality and validity of political studies. अगर politics की बात कर रहे हैं education में, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो political subject है उसको associate करो social science के साथ, even sometimes statistics और mathematics, so that interdisciplinary knowledge भी लोगों को मिलती रहे. देन दूसरा टॉपिक हो जाता है आपका थियरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस. व्हाट इज इट? डेविड ईस्टन वाज द फर्स्ट टू थिंक टू एनालाइज पॉलिटिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन हिज वर्क पॉलिटिकल सिस्टम 1953. डेविड ईस्टन ने कोई आर्टिकल लिखा होगा या फिर उनका जो रिसर्च वर्क है इन द पॉलिटिकल, यू कैन से इन 1953.
जो कि उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कुछ रिसर्च वर्क किया था, उन्होंने कुछ बुक्स भी पब्लिश कराई है, उन्होंने रिसर्च आर्टिकल भी लिखे हैं। तो उसमें उन्होंने ये सिस्टम एनालिसिस के ऊपर जो भी उन्होंने रिसर्च वर्क किया है उसके ऊपर व्यूज़ दिए गए हैं। According to Eastern, political system is an interaction in any society through which authoritative and binding allocation of values are made and implemented. कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम एक ऐसा इंटरेक्शन है या फिर ऐसा पर्टिकुलर रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ कि जो कि सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम साथ में चलते हैं और उसके साथ साथ कैसे अथॉरिटेटिव लीडरशिप बिहेवियर या बाइंडिंग एलोकेशन दोनों साथ में किस तरीके से अपग्रेड करते हैं, वैल्यू बाइंडिंग कैसे होती है, वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, वो सब का भी अंदाज़ा हमें लगाने के लिए हेल्प करता है. So theory of system analysis is helping us to understand how the political system is actually working in the society, in the nation as a whole. David Easton selected political system as a unit of analysis and concentrated on intra-system behavior. इंट्रा का मतलब पता है? इंट्रा मतलब विद इन सिस्टम. एक होता है इंटर. इंटर सिस्टम बिहेवियर किसे कहेंगे? इंटर यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री ले लो या एक पर्टिकुलर अप्रोच ले लो, एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लो, उसका कोई और ही दूसरे टॉपिक के साथ या जो सेम फील्ड का है उसके साथ अगर आप कंपेरिजन करते हो तो वर्ड इंटर आता है. इंट्रा कब यूज़ करते हैं? जब वही सिस्टम के अंदर आप चेकिंग करते हो या फिर आप वही सिस्टम के अंदर आप एनालिसिस को रख के वो स्टडी करते हो. तो डेविड ईस्टन was of the opinion he actually studied unit of analysis and concentrated upon intra-system behavior, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही रह के उन्होंने ये सब रिसर्च किया, स्टडी किया कि क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या चल रहा है और उसके साथ साथ किस तरीके से societal development possible है. Because few seconds ago only we had studied that he was into political arena. David Easton holds that all political systems are both open and adaptive. Adaptive to what? Adaptive to new change, and open मतलब कि broad-minded. He studied the nature of exchange and transaction that takes place in a closed circuit but is made because of the demands from the society or environment. Because of the support from the environment, they become authoritative. ये एकदम आप कह सकते हो कि ये बात को फोकस करता है कि ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें इतना ही एम्फोसाइज करना है और उसके साथ साथ सोसाइटल डेवलपमेंट, सोसाइटी क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, कौन से टाइप का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ चाहते हैं, प्रोग्रेसिव अथॉरिटी के ऊपर वो ध्यान देने की बात करते हैं. सो थियरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस इज नथिंग बट यू कैन से इट इज हैविंग डायरेक्टली लिंक विद द सोसाइटी, to the societal people, with the societal people and for the upgradation of the entire nation. सिर्फ मैं वैसे तो ये पूरी थियरी बहुत बड़ी है बट आई हैव ब्रॉट फॉर यू ओनली द जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी सो दैट यू कैन कम टू नो दैट व्हाट दिस थियरी इज ऑल अबाउट. देन आपका थर्ड टॉपिक हो जाता है थियरी ऑफ रैशनल चॉइस. दिस थियरी इज ऑल्सो वेरी लेंथी इन नेचर बट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव एक्चुअली गॉट इट ओवर हियर इन अ ब्रीफ फॉर्म. Greg Cashman provides a useful set of steps in the rational model. So यहाँ पे ग्रेग कैशमैन जो थे उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, सेट ऑफ स्टेप्स कि रैशनल थियरी या रैशनल मॉडल या रैशनल चॉइस थियरी किसे कहेंगे. तो सबसे पहले तो आप कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है. फिर यू हैव टू रैंक द गोल्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ गोल्स यू आर एमिंग एट. Then gather all the information that can be ongoing. Present scenario है, past scenario हो गया, future scenario हो गया, all the information that you could be able to get regarding your problem. Then identify the alternatives for reaching goal. What sort of alternative you can say ways are there so that you can actually ultimately leads towards your goal that you have to identify. Then another step is after identifying the goals, you have to analyze the alternatives by considering consequences and effectiveness, cost benefit ये हमने पढ़ लिया है, of each alternative and probabilities associated with the success. Sorry यहाँ पे benefit का spelling wrong है. benefits कॉस्ट क्या है, सामने जितना हमने खर्चा किया उसके सामने बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं, उसके फ़ायदे क्या हो रहे हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कितने हमने खर्चा किया, उसका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं. कंसीडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस यानी एंड रिजल्ट को, इफेक्टिवनेस को उसकी देख के हमें फिर ऑल्टरनेटिव्स उस तरीके से एनालाइज करने हैं.
फिर सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट मैक्सिमाइजेस चांसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिटरमाइन इन द अबव। फिर ये सारे ऑल्टरनेटिव अगर आपको मिल गए हैं तो उसमें से आप डिटरमाइन करो कि सबसे बेस्ट कौन सा है, फिर इम्प्लीमेंट करो वही पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को, एंड देन मॉनिटर करो कि एंड इवेल्युएट करो कि जो हमने सोचा था वैसा प्रोग्रेस हो पाया है या नहीं। एक एग्जांपल देती हूँ एंड यू कैन पुट ऑन योर ओन ऑल द स्टेप्स वन बाय वन। टू बिल्ड अप schools in a rural area of any state of India। ये आपका मैंने प्रॉब्लम दे दिया। चलो अब आप ये सारे पॉइंट्स उसमें रख के देखो, दिस ऑल विल सूट। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट rational theory or rational choice theory is focusing upon taking decisions in a rational way, logical way. So thank you so much for listening to me. Do like and subscribe the channel if you like the video, and stay tuned to NTU UGC NET Paper 2 Education. Till the next time, keep learning, keep achieving.